الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجا يوم القيامة. ذی وقار معزز صدر مجلس، ناظم اجلاس، اساتذہ مدرسہ دار القرآن لتحفیظ القرآن، معزز و موقر ذی وقار علماء کرام، نوجوان جمعیت، مقامی جمعیت، ذمہ داران اور پیارے بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر احسان ہے کہ آج بروز اتوار 11 دسمبر 2022 مطابق 17 جمادی الاولیٰ 1444 ہجری بعد نماز مغرب تا عشاء مرکز مسجد اہل حدیث یم گنور کے اندر مقامی یم گنور میں چلنے والا جماعت اہل حدیث کا ایک موقر و غیور ادارہ دار القرآن لتحفیظ القرآن کے نام سے، جس کا آغاز قریب 6 سے 9 ماہ پہلے ہوا تھا، جس کی آج ایک جھلک میری اور آپ کی آنکھوں کے سامنے پیش کی گئی، جس کے اندر مسابقے کے طور پر ان بچوں کی محنتوں سے زیادہ اس کے اوپر اساتذہ کی جو محنت ہے اس کو بتایا گیا. ہم دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادارے کو جامعہ میں تبدیل نصیب عطا فرمائے اور اس ادارے کو تا دم حیات اپنے مقصد پر رواں دواں ہونے کے ساتھ ساتھ تمام جماعت کے ساتھیوں کو اور اقوام مسلمان کو مکمل طور پر شانہ بشانہ چل کر اس کا تعاون کرنے اور ہمت افزائی کرنے، قدم سے قدم لگا کر اپنے گاؤں کے ادارے کو اونچا کرنے کی ہم تمام لوگوں کے اندر سوچ و فکر ہمیں پیدا کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائیں، آمین رب العالمین. حاضرین جماعت، آپ لوگوں کے سامنے جو قرآن کی آیات کو رکھا گیا، اس سے پہلے میں آپ لوگوں سے بتانا چاہوں کہ ابھی جو بچے آپ لوگوں کے سامنے مسابقے کے اندر پڑے ہیں، چلو کون جواب دیں گے آپ میں سے؟ جو بولیں گے آپ کے لیے انعام ہے. بچوں میں سے دار القرآن لتحفیظ القرآن کے اسٹوڈنٹس جو ہیں، میں آپ سے جو سوال کروں گا وہ جواب دیں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے میرے طرف سے انعام ہوگا. میں آپ کے سامنے جو آیات کو پڑھا، وہ آیات کس صورت میں ہے، کس پارے میں ہے؟ لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنہ فاذا قرأناه فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ. لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنہ فإذا قرأناه فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ. انشاءاللہ عوام الناس میں اگر کوئی بچوں کا ساتھ دے تو دے سکتے ہیں، علماء نہیں. نعم بارک اللہ فیکم. سورہ قیامہ
सूरा पारा नंबर माशाअल्लाह, पारा नंबर 20 पर 9, सूरह क़ियामा, रुकू, पहला रुकू, दूसरा रुकू, नाम, पहला रुकू, जी माशाअल्लाह। तो इंशाअल्लाह असातिज़ा से दरख्वास्त करता हूँ कि जो जवाब दिए हैं उनका नाम नोट करें, इंशाअल्लाह उनको इनाम दिया जाएगा इंशाअल्लाह। तो आप लोगों के सामने जो आयत पढ़ी गई है, इस आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दे रहा है। वो बता रहा है, जिसका जिक्र इमाम बुखारी रहमहुल्लाह किताब तफसीर बाब सूरतुल क़ियामा के अंदर बताए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत जिब्राइल सलात व सलाम आकर जब वही कर रहे थे, पैगाम सुना रहे थे, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूल जाने के डर से जल्दी जल्दी तेजी के साथ कुरान को पढ़ रहे थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फौरन हुक्म को नाजिल किया कि ला तुहर्रिक बिही लिसानक लितअजल बिही, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप भूल जाने के डर से अपनी जुबान को तेजी के साथ हरकत मत दो। इन्ना अलैना जमअहु व कुरआना, बेशक हमारी जिम्मेदारी है कि हम कुरान तुम्हारे सीने में जमा करेंगे और हम कुरान तुम्हारी जुबान पर लाएंगे। और कुरान को जमा करने की, हिफ्ज करने की अल्लाह तबारक व तआला ने जिम्मेदारी ले लिया। तो गोया के आज ये मेगनूर की तारीख में ये पहला मुसाबका हिफ्ज कुरान, गोया के कुरान का हिफ्ज, कुरान को याद करना कुरान के मोजिज़ात में से एक मोजिज़ा है, जिसको मैं और आप अपनी दुनियावी ज़िंदगी के अंदर अभी देखा, सुना और इससे मुशाहदा किया। तो आप तमाम लोगों के जो वालिदैन हैं, बच्चों के जो वालिदैन हैं, यकीनन काबिल मुबारकबाद है कि उन्होंने बाकायदा अपने बच्चों को कुरान के हिफ्ज़ कराने के लिए ऐसे इदारे का और ऐसे चीज़ों का इंतखाब किया जिससे अल्लाह तबारक व तआला उनके दिलों के अंदर सुकूनत को नाजिल करने के साथ साथ दुनिया और आखिरत की भलाई को नाजिल करने का अल्लाह तबारक व तआला वादा कर रहा है। तो इसीलिए जैसा कि मैंने बताया कि कुरान का हिफ्ज़ अल्लाह तबारक व तआला के मोजिज़ात, यानी कुरान के मोजिज़ात में से एक मोजिज़ा है। इसीलिए हम और आपको चाहिए कि हम और आप, मेरी और आपकी उम्र जितनी भी हो, मेरे और आपके मसाइल जैसे भी हो, मेरे और आपके मामलात, उलझने, परेशानियां जैसी भी हो, लेकिन मुसलमान की जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे पहला फरीज़ा कुरान की तालीम, कुरान को अपने सीने में जगह दें। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन क़रा अल कुरान व अमिला बिमा फी उल्बिसा वालिता होता जन यौमल क़ियामा। ऐसा आदमी जो कुरान की तिलावत करता है, कुरान को पढ़ता है, तो कल क़ियामत के दिन ऐसे आदमी के माँ बाप को अल्लाह तबारक व तआला मैदान महशर में ताज पहनाएगा। वाकई मुबारकबादी के काबिल है वो माँ बाप जो अपने बच्चों के लिए कुरान की दर्स और कुरान के सबक के लिए इसका इंतज़ाम किए हैं। और यकीनन मैं और आप देखें कि कुरान किसी भी ज़माने के अंदर हिफ्ज़ किया जा सकता है। अभी हमारे इस मजलिस के मेहमान खुसूसी आप लोगों के सामने बताए सऊदी अरब का वाक़या, जो 80 साल की बूढ़ी थी। लेकिन अभी हिंदुस्तान की अगर हम बात करें, हमारे कर्नाटक की बात करें, साउथ इंडिया की बात करें, तो हमारे जो मुरब्बी हैं फजीलतुल शेख मंसूरुद्दीन उमरी मदनी हफिज़हुल्लाह, जो पहले मालेगांव के प्रिंसिपल थे, वो अभी लॉकडाउन के अंदर मुकम्मल कुरान को याद किया, जिनकी उम्र लगभग मेरे अंदाजे के मुताबिक 60 साल के करीब है। अभी हिंदुस्तान के, कर्नाटक के, बेंगलुरु के मशहूर और मारूफ मौलाना मोहम्मद शब्बीर साहब उमरी हफिज़हुल्लाह, जो पेशे से डॉक्टर हैं, जिनकी उम्र 60 साल की है, जिन्होंने लॉकडाउन के मुनासबत से पूरी कुरान को याद किया। तो गोया के कुरान के याद करने के वास्ते, इल्म को सीखने के वास्ते ना मेरे और आपके मसाइल को आड़ रखना है, ना मेरे और आपके उम्र को आड़ रखना है। तो लिहाजा मैं बात को बगैर तूल देते हुए आप तमाम लोगों से ये दरख्वास्त करूंगा कि जैसे आप अपने बच्चों को कुरान के सीखने और सिखाने के लिए इंतजामात में लगे हुए हैं, आप भी अपनी दुनियावी जिंदगी के अंदर कुरान के इल्म को हासिल करने का मुकम्मल तौर पर शौक और जज्बे को पैदा करें इंशाअल्लाह।